Assalamu alaikum Lahore and Greenall. So all of the teachers before me who told you something about the paper, that is more than enough for you people. लेकिन इसमें थोड़ी चीजें ऐड अप कर लूँ मैं. पहली बात यह है कि कुछ हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 A part. It's a source-based question. A source-based question में there is a paragraph given. अब आप you first read the question first. पहले question पढ़ना है and then go to the source. That will help you to save some time. And while reading the source, you have to point out at least 3 reasons because the question carries 3 marks. So how would you answer, then how would you write the very answer? You can write the answer in points. You can write the answer in paragraph. And even if you write the whole paragraph as it is, you will be awarded with all 3 marks. सुन लें आप, इतनी मुश्किलों से दूर से बैठ के आए हैं आप, ठीक है ना, इतना टाइम आपने अपना प्रेशियस निकाला है यहाँ के लिए, तो फिर खामोशी से बैठ के सुनना आपका बनता है. यहाँ पे जितने भी टीचर्स आए, कोई भी जनरल दे आर नॉट गिवन एनी सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव्स. यहाँ पे वो आए हैं आपके लिए. आपका बैठ के सुनना फर्ज है. नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए था. तो ये शोर बंद कर दें पहले. क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट में you are given another source जिसमें sometimes a painting is given or a picture होती है, या फिर they could be के banner हो सकता है, ठीक है ना. So what you have to do, you have to write first what you see and then you can give the inference on that what you have already seen in the picture. जब आप एक चीज बताएंगे कि I have seen this and I can infer this, so that will make you to score 2 marks. At least 2 inferences are required to be written down. So that will help you score 4 marks, and the 5th mark you will score after giving 1 relative information to the very source, which should not be written in the source, but that is very much related to it. 7 marks की मैं आपको बताया, बाकी 2 टीचर्स भी बता गए. You have to answer in 3 paragraphs. 3 paragraph में 3 reasons are needed to be explained briefly. 14 and 10 marks का question है, that would be written on the same pattern. इसमें you are required to write 6 paragraphs. The first paragraph that should be of introduction. If you want to write introduction, that's good. If you don't want to write introduction, skip it. Side में निकालें. Time save करें. Then write 4 paragraphs on 4 reasons. और उसमें से एक paragraph should contain that reason which is already a part of the question. अब सवाल ये है कि whether that reason should be written down in the first paragraph or in the second or third or fourth. जहां मर्जी आता आप लिखें. आप 3rd में लिखना चाहते हैं the reason which is the part of the question, it's up to you. 4th में लिखना चाहते हैं, it's up to you, but that should be there in the answer. 3 और related information. 7 marks के बारे में आपको मैं बता दूं कि each paragraph must not have less than 50 words. और 14 marks में भी at least each paragraph must not be less than 50 words. 50 words से नीचे आपने paragraph नहीं लिखना है. 14 marks की question में last paragraph में you have to do the evaluation. For 10 marks, while evaluating the question, the answer, you have to give 1 logic. और 14 marks के लिए you have to come up with 2 logics. There you will score all 14 marks. अगर आप introduction नहीं लिखेंगे तो you won't be losing the marks.
that would automatically be added in your पेपर के क्वेश्चन के जो मार्क्स उसमें. इसके अलावा क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड करना सीखें. मतलब 2-2 साल पढ़ के आ जाते हैं, यही नहीं पता होता है कि करना क्या है. सवाल में दिया होता है कि द नेगोशिएशंस held during the First World War, you're going to resolve the constitutional crisis in India, and you start writing about cabinet mission. You should be knowing the timeline first. ये आवाजें बंद करते हैं, खामोश हो जाएं, सुन ले. इधर से बड़ी आवाज आ रही है आपकी. तो मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करें. आप में सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप क्वेश्चन को सिर्फ सरसरी तौर पे पढ़ते हैं और फिर अंधाधुन आंसर लिखते हैं, और वो गलत होता है. उसमें टाइमलाइन निकालें. आपके टीचर्स ने आपको कीवर्ड सिखाए होंगे, वो कीवर्ड्स देखें, उसके मुताबिक आंसर लिखें. ज्योग्राफी में भी वंस इट्स रिटन इन डिस्क्राइब, तो यू हैव टू गिव ओनली डिस्क्रिप्शन. एक्सप्लेन है तो you have to describe the thing and further you have to explain it. Distance measure करने के लिए डिवाइडर का इस्तेमाल करें. A से B के दरमियान डिस्टेंस लेना है, ड्रॉ अ लाइन एंड देन मेक यूज ऑफ अ डिवाइडर, जो कंपास की शक्ल का होता है, जिसके 2 नीडल्स होते हैं. वो इसी मकसद के लिए होता है. और जब आपको एक मैप दिया हुआ है in which the boundaries are not shown and there are so many industrial general locations are given, तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं. why you give the reference of the provinces once they are not shown in the map? जब पंजाब शो नहीं हुआ, सिंध शो नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पंजाब? मैप को देखें, उसको समझें और उस तरह से आंसर करें. बहुत सारी चीजें बाकी भी टीचर्स आएंगे बताएंगे आपको. कुछ चीजें आपको जिस दिन पेपर है वो क्या करना है और क्या नहीं करना है. सबसे पहले 7-8 घंटे की नींद करके जाना है. और नाश्ते में ये पाए निहारी खाने वाले जो है ना, उस दिन हाथ हौला रखें. एंड गेट योरसेल्फ रिलीव्ड इन वॉशरूम फर्स्ट, और लाइट ब्रेकफास्ट करके जाएं. सुनने मेरी बात इधर से, फिर आप शुरू हो गए हैं. एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंच के जहां पे ग्रुप्स बैठे होते हैं, नेवर एवर ज्वाइन दोज ग्रुप्स. वो आपका सारा कॉन्फिडेंस शैटर करेंगे, क्योंकि वो चीज वो पूछेंगे जो आपको नहीं आती. और एग्जामिनेशन में जाने से पहले यू शुड बी हैविंग ऑल दोज जो है ना थिंग्स विद यू विच आर रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. आपके पास पेंसिल होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए. कोशिश करें जो आपके पास स्केल लेते हैं, रूलर जो लेते हैं, एक खास किस्म का आता है प्लास्टिक, उसके एंड पे मैग्नीफाइंग ग्लास दिया होता है. बाय दैट वन. उसे पिक्चर को डिटेल में आपको देखने में जो है ना मदद मिलेगी. इसमें माइनर डिटेल्स होती हैं बाज दफा जो आप स्किप कर जाते हैं. और नमाजें पढ़ा करें मेहरबानी करके, खुदा से भी मदद मांगे. आपकी अपनी जो है ना जितनी काबिश है वो तो हमने देख ही लिया, ठीक है ना. बाकी आप सबको गुड लक. बहुत बहुत जी. क्वेश्चन? Fazana Mustafa asks, what counts as an example in geography? What counts as an example in geography? Yes. Examples should be always जो है ना, it should be related to the question. अगर आपको बराज का आपको एग्जाम्पल पूछा तो you should be knowing the names of the barrages.
डैम्स का पूछा है तो डैम्स का आना चाहिए, रिजर्वॉयर्स का पूछा है तो किसी का भी दे सकते हैं, डैम्स या बैराजेस का, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी का दे सकते हैं, सो यू कैन राइट कायदतन सोलर पार्क भावलपुर, ठीक है ना। विंड पावर की एग्जाम्पल देनी है तो जिम्पर विंड पावर प्रोजेक्ट, आप इस तरह की एग्जाम्पल देंगे विच शुड बी द रेलेवेंट वन, इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स ना दें। Ms. Mahmoona asked, how do we attempt the question, to what extent was Pakistan successful in establishing a constitution from 1956 to 1973? अच्छा, this question जो है ना, इसमें you are required to write, you know, 4 paragraphs, and in 4 paragraphs you have to write in the first 2 the constitutional attempts which Pakistan had made just after independence, starting with objective resolution, ठीक है ना, जिसने बताया तकी ने। इसी तरीके से you can write about the constitution 1956, फिर आप एक अटेम्प्ट बनाएंगे 62 का, 73 का, फिर 2 पैराग्राफ में you have to write about their failures, 56 क्यों फेल हुआ, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हुआ, देन यू हैव टू राइट के 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अनॉमलीज हैं, स्पेशली ड्यूरिंग जियाद रजीम, ठीक है ना, कहां पे हमें फेलियर आई। सो यू हैव टू राइट ऑन ऑल ऑफ दिस एंड डू मेंशन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एज वेल व्हिच वाज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड ओवर पाकिस्तान इन 1970, उसका भी हवाला आप दें। Someone in the crowd asks, what distinguishes an A-star student from an A क्लैपिंग student? बंद कर दे, मैं जाने वाला हूं बस अभी। जी पूछे। What distinguishes an A-star student from an A-grade student? A-star student and an A student. A student. What फर्क क्या है? आपको पता है, they had been a student of mine and she brought U grade, और मैंने हमेशा उसे evaluate किया A grade में। ये याद रखें, आपका A स्टार और A आना, इसमें आपकी बेशक थोड़ी बहुत मेहनत जरूर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अल्लाह का करम है। जिस बच्ची का U ग्रेड आया था उसके 2 दिन पहले ही उसकी सिस्टर की डिवोर्स हुई थी। तो आप कोशिश करें, अल्लाह से दुआ मांगे कि आपसे लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक आपके सामने कोई ऐसा इवेंट और कोई ऐसा वाकया ना हो जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाएं। जितना आप रिलीव्ड होकर क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उतना अच्छा होगा। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी आपके ग्रेड को गिरा सकता है, एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको जो है ना आपके ग्रेड गिर सकते हैं, ठीक है ना। बाज दफे ऐसे होता है कि अल्लाह की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप जो याद करते हैं उसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बात मेरी पल्ले बांध लें, आखिरी 2 दिनों में जो चीज बार बार आपके जहन में आ रही है, दैट इज द डिवाइन हेल्प। उस चीज को जरूर याद करें, उस चीज को जरूर तैयार करें। और ये मेरा जो है ना पिछले 35 साल का तजुर्बा है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज बार बार आपके जहन में आ रही है कि ये क्वेश्चन देखना है, उसको जरूर तैयार करें। उसका कुछ ना कुछ हिस्सा या वो पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। किसी चीज को लाइट ना लें, सिलेक्टिव स्टडीज पे ना जाएं। मेहरबानी करके सब टीचर्स के गेस्ट पेपर लें, सबके गेस्ट पेपर करें। जो इस हॉल में है, जो इस हॉल से बाहर है, चाहे वो मुजम्मिल है, उमर दावर है, चाहे वो इमरान गुलजार है, जहां जहां से आपको गेस्ट पेपर मिलते हैं सबको करें। और अल्टीमेटली जब आप गेस्ट पेपर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप कोर्स 3 से 4 दफा रिपीट कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।